Everyone, welcome back. Today we shall be starting off with the next macromolecule, that is lipid. Fine. So a molecule which is macro in nature and is present inside the all the living entities. Fine. Talking about lipids. When we talk about lipids, before talking about lipids, we shall just have a quick look at the carbohydrate. Carbohydrate is basically made up of what? That is many units of monosaccharide. The monomer is what? That is a single unit of sugar. Fine, which are joined together and it forms the polysaccharides. Similarly, and it is being joined by the glycosidic bond. Similarly, when we talk about proteins, it is made up of amino acid. Amino acid is that is it forms the chain of the amino acid by which bond? That is the peptide bond. Today, moving ahead with the next one, that is lipids. Lipids are generally water insoluble, that we all know. They are oily in nature and therefore are said to be as water insoluble. वो water में soluble नहीं होते. Rather are considerably soluble in organic solvent like ether, chloroform, benzene वगैरह में वे soluble हो सकते हैं. Lipids are important constituent of diet. वो diet में बहुत ज़रूरी है because of their high energy value, because they have good deal of energy value. Whensoever they are metabolized, a good amount of energy is being released and therefore they are very important in the diet. Now they are formed from what? They are types of organic material and therefore made up of carbon, hydrogen and oxygen atom. Hydrogen atom, the number of hydrogen atoms are much more than that of the oxygen atom. ये आपको याद रखना ज़रूरी है. The hydrogen atoms in the lipid are comparatively more than that of the oxygen atom. अब जब हम उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, लिपिड्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं जब भी, तो जैसे ही प्रोटीन्स की बात करते हैं तो इट इज़ मेड अप ऑफ चेन ऑफ अमाइनो एसिड. Fine, it is made up of nothing but the chain of amino acid. Moving ahead with the next one, that is carbohydrate. It is nothing but the chain of sugars. Fine, the sugars which are joined together forms what? Forms the carbohydrate, or the say polysaccharides. Fine. Now moving ahead with lipids. What is basically lipids made up of? Each molecule of lipid is formed by the combination of one molecule of alcohol with 1 to 3 molecule of fatty acid. ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है. वो कैसे बनता है लिपिड? दैट इज इट इज़ फॉर्म बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल. एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल होता है, कोई भी अल्कोहल हो सकता है, तरह तरह के अल्कोहल होते हैं, और उसमें 1 से 3 फैटी एसिड्स हो सकते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैटी एसिड और अल्कोहल क्या होते हैं. इन दोनों के जुड़ने पे बनता है लिपिड्स. क्या बनता है? लिपिड. फाइन. तो इनमें कोई चेन वगैरह नहीं होती. इट्स वेरी सिंपल. दैट इज़ जब अल्कोहल होता है, अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल, अल्कोहल का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो या तो एक फैटी एसिड के साथ या तो एक से ज़्यादा 3 भी फैटी एसिड हो सकते हैं और फिर वो बनाते हैं लिपिड्स. फाइन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Now, when we talk about further about alcohol which is present inside it, the alcohol is either as trihydroxy alcohol or as monohydroxy alcohol. मतलब में ज़्यादातर ये ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है, तब उसे बोलेंगे ग्लिसरॉल. क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल. दैट इज़ ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल का मतलब क्या होता है? 3 कार्बन एंड 3 OH ग्रुप्स. फाइन. दैट इज़ 3 कार्बन होता है और उसके साथ कितने अटैच्ड होते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप. दैट इज़ OH ग्रुप कितने होते हैं? 3 OH ग्रुप होते हैं. और ऐसा जो अल्कोहल होता है उसको हम बोलेंगे ग्लिसरॉल. क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल. फाइन. या तो फिर ज़्यादातर होता है मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल. दैट इज़ एक OH, एक कार्बन और उसके साथ एक OH जो अटैच्ड होता है. वैसे जैसे कि ग्लिसरॉल की बात करेंगे तो 3 कार्बन हैं, फिर हर 3 कार्बन पे एक OH ग्रुप अटैच होता है, तो इससे हम बोलेंगे CH2H, CHOH, CH2OH. तो दिस फॉर्म्स नथिंग बट द ग्लिसरॉल. फाइन. सो अल्कोहल की बात करें तो जिसमें मतलब में लिपिड्स जो होते हैं वो होते हैं फैटी एसिड और अल्कोहल के बने. अब वो अल्कोहल कैसा हो सकता है? मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल भी हो सकता है या फिर ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, जैसे कि ग्लिसरॉल जितना बड़ा अल्कोहलिक ग्रुप भी उधर अटैच हो सकता है. फाइन. अब हम बात करेंगे फैटी एसिड की. फैटी एसिड कैसे कैसे होते हैं? फाइन. कौन कौन तरह के किस तरह के फैटी एसिड उसमें अटैच हो सकते हैं? अब
फैटी एसिड की बात करें तो उसकी स्ट्रक्चरल दैट इज़ मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, COOH, उसके साथ होता है एक R ग्रुप अटैच, दैट इज़ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच टू एन R ग्रुप, और फिर वो बनाता है फैटी एसिड। वेरी सिंपल, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है COOH, उसके साथ अटैच होता है एक R ग्रुप, तभी बनता है फैटी एसिड। फाइन, तो ये हो गया फैटी एसिड, उसके साथ अटैच होता है अल्कोहल और फिर बनता है लिपिड्स। फाइन, तो हम जब फैटी एसिड की बात करेंगे तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो बेसिक COOH, उसके साथ R ग्रुप कैसा होता है, तो R ग्रुप मिथाइल हो सकता है, दैट इज़ COOH CH3। इथाइल ग्रुप हो सकता है COOH C2H5। फाइन, और हायर नंबर मतलब में कहाँ तक हो सकते हैं, दैट इज़ 1 to 19 कार्बन एटम जितने ये R ग्रुप उसमें अटैच हो सकते हैं। फाइन, जो भी ये R ग्रुप है वो कहाँ तक, दैट इज़ इधर कार्बन 2 है, 3 4 5 19 तक इधर क्या अटैच हो सकते हैं, फैटी एसिड, दैट इज़ R ग्रुप अटैच हो सकते हैं, हायर नंबर ऑफ। फाइन, सो फैटी एसिड बेसिकली किससे बनता है, फैटी एसिड इज नथिंग बट COOH अटैच्ड विद एन R ग्रुप। R ग्रुप could be methyl, ethyl and it could range up to 19 carbon atom. Fine, that is CH2 ग्रुप जो होते हैं, ये जो CH2 वाले ग्रुप होते हैं वो कहाँ तक हो सकते हैं, दैट इज़ 19 कार्बन एटम तक हो सकते हैं। अब जब फैटी एसिड की हम बात करेंगे तो फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड की जब आप बात करते हैं तो सैचुरेटेड का मतलब होता है उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, अब वो सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया, उसके अंदर कुछ भी नया ऐड नहीं हो सकता, ना कि हाइड्रोजन ना कि कोई हैलोजेनिक ग्रुप, कुछ भी नया अंदर ऐड नहीं हो पाएगा, तो दैट इज दोज आर टर्म टू बी एज सैचुरेटेड विथ नो डबल बॉन्ड, उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता जो ब्रेक डाउन होके अंदर कुछ ऐड होगा। फाइन, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है, दैट इज होपफुली यू ऑल स्टडी केमिस्ट्री एंड यू नो ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है दैट इज दे हैव डबल बॉन्ड इनसाइड देम, दैट इज प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड, एब्सेंस ऑफ द डबल बॉन्ड। सो प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि भाई वो डबल बॉन्ड टूट के अभी अंदर कुछ हाइड्रोजन हेलोजन वगैरह कोई भी ग्रुप ऐड हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। सैचुरेटेड है मतलब में नो डबल बॉन्ड प्रेजेंट, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं एक्सेप्ट C डबल बॉन्ड OH की बात करें तो। फाइन, इधर जो COOH ग्रुप है इधर एक डबल बॉन्ड होता है, बाकी सारी जगहों पे क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। फाइन, दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हेलोजन एटम, उसमें कोई भी हाइड्रोजन हेलोजन कुछ भी वो यस कुछ ऐड नहीं कर पाते, जैसे कि C डबल बॉन्ड OH, और उसके बाद जितने भी कार्बन होते हैं सबके अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं, और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से वो कुछ भी नया उसमें ऐड नहीं कर पाते। फाइन, मतलब ये जो R ग्रुप होता है उसमें सारे में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। Now, no hydrogen, no halogen could be added. Two successive carbon atoms therein are linked by a single bond. मतलब में जितने भी कार्बन होते हैं, कार्बन एटम होते हैं, those are linked by a single bond. Fine. On the basis of carbon atom, on the basis of कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है ये सैचुरेटेड के अंदर, फाइन, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर उसका होगा और उसके बाद नीचे होगा R ग्रुप। R ग्रुप में कितने भी कार्बन हो सकते हैं, लाइक जैसे कि फाइन, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन एटम कौन से नंबर, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, फाइन, उसके बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम शॉर्ट चेन फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड। फाइन, तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड का मतलब होता है उसमें बहुत कम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। फाइन, जैसे कि ब्यूट्रिक एसिड की बात करें, ब्यूट्रिक एसिड एक टाइप ऑफ फैटी एसिड है जिसमें कार्बन नंबर कम होते हैं। वैसे ही लॉन्ग चेन फैटी एसिड की हम बात करें तो जैसे कि एग्जाम्पल है पैल्मेटिक एसिड, स्टेरेटिक एसिड। तो पैल्मेटिक एसिड जो है उसके अंदर कार्बन एटम होते हैं 16,
फाइन 16 कार्बन एटम अलोंग विथ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जैसे कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन है वो भी काउंट होता है। तो दैट इज दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो ऐसे करके टोटल कार्बन कितने रहेंगे, उसके अंदर 16 होंगे, जिसमें कार्बोक्सिलिक कार्बन जो होता है वो भी काउंट हो जाता है। ये जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है वो भी इसके अंदर काउंट हो जाता है। एंड CH3 दैट इज़ उसकी फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये क्या है, C डबल बॉन्ड OH क्या है, तो दिस इज़ नथिंग बट द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज़ बीन अटैच्ड टू एन R ग्रुप, सो दिस इज़ एन C डबल बॉन्ड OH ग्रुप अटैच टू एन R ग्रुप। तो R ग्रुप की हम बात करें तो R ग्रुप के अंदर आप देख सकते हैं दैट इज़ 1 एंड 14, तो 14, 15 और इसके साथ ये हो गए 16 कार्बन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पाल्मिटिक एसिड। फाइन, तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड। दैट इज अ लॉन्ग चेन क्या होती है, जिसमें बहुत नंबर ऑफ कार्बन होते हैं जैसे कि पाल्मेटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन होते हैं। देन वी हैव स्टेरेटिक एसिड दैट इज़ 18 नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, और ये 18 किसके साथ काउंट होते हैं, दैट इज़ अलॉन्ग विद द कार्बोक्सिलिक कार्बन। फाइन, सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द सैचुरेटेड। yes, saturated. We shall now understand about the unsaturated fatty acid. Unsaturated fatty acid की हम बात करेंगे तो those are capable of accepting hydrogen or the halogen atom because they have double bond inside them. उनके जो कार्बन होते हैं वहाँ बीच बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, तो उस डबल बॉन्ड की वजह से फाइन यस जैसे कि समझ लो इधर डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड की वजह से ये टूट सकते हैं और इधर कुछ नया ऐड हो सकता है जैसे कि हाइड्रोजन हेलोजन वगैरह। टू सक्सेसिव कार्बन एटम मे हैव एट वेरियस प्लेस डबल बॉन्ड, मतलब में कभी कहीं जगह पर सर्टेन प्लेसेस पे डबल बॉन्ड हो सकते हैं। उसमें भी दो तरह के होते हैं, जैसे कि कम नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो शॉर्ट चेन, और ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो लॉन्ग चेन। शॉर्ट चेन की हम बात करें तो जैसे कि है क्रोटोनिक एसिड, एग्जाम्पल दे रखा है आपको याद रखना है, क्रोटोनिक एसिड जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। और लॉन्ग चेन की बात करें तो दैट इज की ऑलिक एसिड। फिर अब आपको ऐसा पूछा जा सकता है जैसे कि स्टेरेटिक एसिड जो है उसमें भी कार्बन 18 होते हैं, और जो ऑलिक एसिड है उसके अंदर भी कार्बन का नंबर होता है 18, बट उन दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे कि दोनों ही लॉन्ग चेन फैटी एसिड है बट ये है सैचुरेटेड। स्टेरेटिक एसिड जो है वो है सैचुरेटेड, और जो ऑलिक एसिड है वो है अनसैचुरेटेड। फाइन, तो यही चीज़ है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड एंड द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. We in the coming class shall understand about how an lipid is being formed and the different types of lipid. Thank you.